Morning, everyone. Students, yesterday we completed our syllabus, right? Now, today we are going to start the revision, and firstly, we will start with the chapter symmetry. Okay, so symmetry chapter we have done, and today we are going to start its revision. Today you are having the test also from the chapter symmetry, right? So now I'm going to share the screen with you. We are going to do the MCQs related to the symmetry chapter, right? In order to give the answer, you will raise the hand and I will unmute the child, and then that child will give the answer. Okay? So now just wait for a second. Let me share the screen. So beta, is the screen visible? Thumbs up, show thumbs up if it is visible. Right. So here is the first question. Now you have done the line of symmetry. In the symmetry chapter, first of all, what we have done about the lines of symmetry. You have done the line of symmetry related to different figures. Okay, different figures, different alphabets. Now we are going to discuss the same. How many lines of symmetry are there in an equilateral triangle? Okay. Okay, Harjeet. Yes, ma'am, 3. Yes. Okay, Harjeet. In an don't mute yourself. In an equilateral triangle, we know all the 3 sides are equal. Therefore, it has 3 lines of symmetry. How many lines of symmetry does an isosceles triangle has, Harjeet? Ma'am, 1. Yes. Isosceles triangle has 1 line of symmetry. हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया है, तो we will discuss the other triangles also like this. Isosceles word बेटा जहां आ जाए वहां उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 1. ठीक है, जैसे आपके पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू हैव आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, isosceles trapezium, you know what is a trapezium? It is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. अगर सिंगल ट्रेपेजियम लिखा है, सिंपल ट्रेपेजियम, उसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. बट अगर बेटा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिख दिया है, देन इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, एंड हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्केलीन ट्रायंगल हैज? नैतिक. Ma'am, no line of symmetry. Yes. A scalene triangle is that in which all the sides are different, so therefore it has no line of symmetry. Next, how many line of symmetry are there in a square? This is very simple, all of you know. Square में चारों sides equal है, तो उसकी line of symmetry है 4. Everyone, please look on the screen. Then how many lines of symmetry are there in a rectangle? ऐसे क्वेश्चन आने बेटे एग्जाम्स में आपको, ठीक है. अगर एमसीक्यू में आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिस हैज, ऑप्शंस भी होंगी. या फिर कैसे, अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा? ड्रॉ एंड राइट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ सर्कल. देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर फिगर व्हिच इज आस्क्ड. उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी भी है. मान लो रेक्टेंगल है, जैसे रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री दो होती हैं, वो आप बनाओगे भी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और साथ में लिखोगे भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. सिर्फ बनाकर नहीं छोड़ देना. तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट आर आपने इस तरह से याद रखना है कि जैसे रेक्टेंगल और रोम्बस, रोम्बस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सो स्टूडेंट समटाइम्स राइट that rhombus has 4 lines of symmetry. But beta, rhombus does not has 4 lines of symmetry, it has 2 lines of symmetry, right? You have to remember this. R for rectangle, R for rhombus, और दोनों की line of symmetry कितनी होती है? 2. दोनों की line of symmetry कितनी होती है? 2. And look on the board.
जैसे बेटा अगर हम रोम्बस की भी बात करें, दिस इज अ रोम्बस, थोड़ा इक्वल बनाएंगे, ठीक है। रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है और बेटा ऐसे ज्वाइनिंग द ऑपोजिट vertices means joining the diagonal, this diagonal and this diagonal, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे नहीं बनानी, स्लैंटिंग नहीं बनानी, वो गलत होती है, ठीक है। और रेक्टेंगल की भी हॉरिजॉन्टल एंड मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। How many line of symmetry are there in a regular pentagon, regular hexagon? So you know regular word, हाँ जी मुझे बताएंगे अब, just 1 minute। हरप्रीत, yes Harpreet, come on beta, tell me the answer। Harpreet, raise your hand। Yes Harpreet, you are in the class, raise your hand। हर्षिया, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, 5 line of symmetry. रेगुलर पेंटागन की, रेगुलर मींस ऑल द 5 साइड्स इक्वल, रेगुलर पेंटागन की 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, और रेगुलर हेक्सागन की हर्षिया, Ma'am, 6. रेगुलर हेक्सागन की 6, रेगुलर हेप्टागन या सेप्टागन कुछ भी कह सकते हैं उसकी 7, रेगुलर ऑक्टागन की 8, रेगुलर नूनागन की 9, रेगुलर डेकागन की 10, ऐसे ही। Because what is written, the word is written regular, regular means all the side as well as all the angles of that polygon are equal, okay। Then how many lines of symmetry are there in the following figure? It is very much clear, this is the T, and इसकी कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वर्टिकल, दैट इज 1। सिंपल है बेटे। इसकी देखिए, इसकी ऐसे स्लांटिंग, दिस फिगर आल्सो हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज वेरी इजी। इसकी भी 1 हॉरिजॉन्टल, आई होप एवरीवन इज गेटिंग। इसकी भी 1 एम है ये वर्टिकल, इसकी भी 1, ये सारे अल्फाबेट्स की, ठीक है, सारे अल्फाबेट्स की, सारे फिगर्स की आपने लाइन ऑफ सिमेट्री लर्न करनी है, रट लेनी है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसकी देखो, ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ काइट। हाँ जी, टेल मी द आंसर। पुरंजे, यस पुरंजे, 11th क्वेश्चन। मैम आंसर इज 1। आंसर इज 1। सी बेटा, दिस इज अ टाइप ऑफ अ काइट। काइट क्या होता है, इन विच द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऊपर वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, नीचे वाली जो साइड साथ वाली एडजेसेंट साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। एंड द काइट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो द आंसर इज 1। नाउ दिस इज अ सर्कल। Circle has how many line of symmetry? Infinitely many line of symmetry. Isosceles triangle we have discussed, scalene triangle we have discussed, rhombus we have discussed. Now comes the parallelogram. How many lines of symmetry are there in a parallelogram? Okay, just 1 minute. I'll ask this from Dakshdeep. Dakshdeep. यस बेटे, आंसर दो, कहां गए? गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा? आर यू देयर इन द क्लास? सी, एवरीवन इज रेजिंग द हैंड। नाउ हर्षिया, यू आल्सो रेज द हैंड बेटे। ओनली 2-3 स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एवरीवन इज नाउ raising the hand, very good। So let me ask, but there are many students who are still not raising the hand। See, सम्राट, संकेत, सात्विक, सृष्टि, युवराज, धर्मजीत, ये सारे बच्चे जो हमें पता है एक ही टाइप के हैं, कोई हैंड रेज नहीं करता। समरदीप, आंसर दो बेटा, व्हाट हैपेंड? कुछ क्या कह देंगे, मैंने आपको कुछ कह देना है?
अनम्यूट भी नहीं हो रहे हो आप, पता नहीं आपने क्या सिस्टम किया हुआ है, लॉक किया हुआ है खुद को म्यूट होने अनम्यूट होने से। एनीवेज, आदित्य, यस आदित्य। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, शाबाश। बताओ, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ पैरेललोग्राम? None of these. 0. जीरो बेटा, नन ऑफ दीज नहीं। 0. Yes, the answer is zero. A parallelogram has zero line of symmetry. None of these में तो फिर गलत हो जाएगा ना। We have the option zero. So ये आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? जीरो। लाइन ऑफ सिमेट्री इज वेरी इजी। Further we have rotational order of rotation, that also we have discussed in detail. चलो पहले ये देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल, इसकी बताएंगे। ओके, ये कौन है? नव्या। हाँ जी नव्या। Yes, ma'am. जी बेटा, शाबाश। बताओ। Ma'am, 0. हाँ जी, वाई जीरो? Ma'am, 0. वाई जीरो? Ma'am, because a quadrilateral. It's a quadrilateral. कोऑर्डिनेटर। मैं टू क्यों नहीं बोला, फोर क्यों नहीं बोला? हिंदी में बता दो। बिकॉज इट इज नॉट। मैम क्योंकि उसकी साइड्स होती है। It's a four-sided. आप ये बोलोगे बिकॉज इट इज अ जनरल कोऑर्डिनेटर, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर। लाइक, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, रेक्टेंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, कुछ ऐसे टाइप नहीं, जनरल कोऑर्डिनेटर है। So a general quadrilateral can be that also in which all the four sides are different, like scalene triangle. So अगर सिर्फ quadrilateral लिखा है, it will have the zero line of symmetry. So about line of symmetry, it is very much clear to you. Line of symmetry में again I am telling you, you have to learn, you have to revise the line of symmetry of all the alphabets and beta all the geometrical figures. You have done that in detail, उसको revise करना, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। मुश्किल चैप्टर नहीं है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन, देन वी विल कम टू द एमसीक्यू अगेन। नाउ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटे? जैसे अगर कोई फिगर, हम उस फिगर को रोटेट करते हैं, ठीक है, जो फिगर किसी एंगल पे आकर सेम दिखती है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है, सपोज रेक्टेंगल को अगर हमने 90 डिग्री का टर्न दिया, इट इज फॉर दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द क्लास अर्लियर, लाइक दिस इज द रेक्टेंगल, राइट? इफ आई गिव द रेक्टेंगल टर्न ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का टर्न देके रेक्टेंगल हमारे पास कैसा हो जाएगा? ऐसा वर्टिकल। ये हमने कितना टर्न दिया? 90 डिग्री का। अब रेक्टेंगल विल बिकम वर्टिकल। अगेन इफ आई विल गिव द टर्न ऑफ 90 डिग्री, आई विल गेट द हॉरिजॉन्टल फिगर। सो इट मींस जैसा मेरा पहला रेक्टेंगल था वैसा मुझे कितने डिग्री घुमाने पे सेम दिख रहा है? 90 प्लस 90 180, राइट? फिर 90 पे घुमाएंगे, मतलब 180 प्लस 90 मींस 270, 270 पे घुमाएंगे, फिर वर्टिकल, फिर 360 पे घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल। सो हम 0 से लेके 360 डिग्री तक, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर वेयर वी विल फाइंड द फिगर सेम? यस मिष्टी? 37 students in the class and only 18 have raised the hands. हाँ जी मिष्टी बोलिए बेटा, शाबाश। Yes, ma'am. Ma'am, रोटेशनल सिमेट्री के एंगल्स होंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360। 270 पे तो सेम नहीं दिखेगा ना मिष्टी? मैम यस। तो रेक्टेंगल आपको कौन कौन से एंगल्स पे सेम दिखेगा? मैम 180 एंड 360। वेरी गुड, 180 एंड 360। क्योंकि ये दो एंगल्स पे हमें सेम दिखेगा मिष्टी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटे? मैम 2। यस, जितने एंगल्स पे हम, जितने एंगल घुमाते वक्त 0 से लेके 360 आपके
आपको समझाने के लिए आई एम यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज। आपने फिगर को घुमाना शुरू किया, 0 से लेके 360 तक घुमाते हो आप, ठीक है ना, पूरा टर्न देने के लिए। जितने एंगल्स पे वो फिगर आपको सेम दिखती है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल? सो द ऑर्डर इज 2। एंड इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल क्या है 180, सेकंड एंगल क्या होगा 180 प्लस 180 360, ठीक है। 60. अगर बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का ऑर्डर रोटेशनल क्या होता है 4, ठीक है। स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है बेटे 4। 90 पे भी 4. सेम दिखेगा, हाँ जी मिष्टी, ये देखिए ये स्क्वायर है, मैं इसको 90 पे घुमाऊंगी तब भी मुझे ऐसा दिखेगा, 180 पे भी, 270 पे भी, 360 पे भी। एट एवरी एंगल 90, 180, 270 द स्क्वायर विल अपीयर सेम टू मी, ठीक है। सो स्क्वायर का ऑर्डर कितना है 4 एंड द एंगल इज 9, ठीक है। बाकी और फिगर्स का भी करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम ट्राइंगल का। आपने ये लर्न करना है, लर्न रखना है, ठीक है। स्क्वायर का 4, रेक्टेंगल का 2, ठीक है। और देखिए अब ट्राइंगल, at which angle, on rotating at which angle we will see the triangle same? Suppose this is an equilateral triangle. किस equilateral triangle है in which all the sides are equal? On rotating at which angle the triangle will appear same to me? That is at 120 degree. दूसरा क्या होगा, फिर कौन से एंगल पे हमें ट्राइंगल सेम दिखेगा 120 प्लस 120 240। तीसरा एंगल 240 प्लस 120 360. So an equilateral triangle has order 3. अब लाइन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हम, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर की। ऑर्डर कितना है 3 और एंगल क्या है, एंगल मतलब जो पहले एंगल पे हमें फिगर सेम दिखती है, एंगल इज 120, फिर दूसरा 240, तीसरा 360, ठीक है। एंड द फिगर which has order more than 1, figure which has order more than 1, that figures has rotational symmetry, but the figures which has rotational symmetry only 1, that does not have rotational symmetry. जैसे मान लो आपके पास अल्फाबेट A है, now what is the order? हाँ जी, who will tell me? लक्षित, हम 360 डिग्री। ऑर्डर पूछा बेटा मैंने, एंगल नहीं पूछा। 1. यस, ऑर्डर इज 1, वेरी गुड लक्षित। 90 पे आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। 180 पे इस तरह से, फिर इस तरह से 270 पे, फिर 360 पे घुमाओगे, मतलब ए को एक पूरा टर्न दोगे, देन ओनली द ट्राइंगल विल अपीयर सेम टू, सॉरी दिस फिगर ए विल अपीयर सेम टू यू, मतलब पूरा टर्न देने पे, और किसी एंगल पे आपको ए सेम नहीं दिखेगा ऐसा। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1। सिंस द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 1, therefore it has no रोटेशनल सिमेट्री। क्वेश्चन आता है डज द फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, तो आप देखोगे अगर उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है तो उसके पास तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, अगर 1 है ऑर्डर तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। चलिए लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड द ऑर्डर ऑफ rotational symmetry of an equilateral triangle. So clearly the answer is 3. Square, answer is 4. What is the order of a rotational symmetry of the following figure? देखो बेटा ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप 90 पे घुमाओगे आपको सेम दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे करके एक रोटेशन, फिर ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सेम दिखेगा, तो इसका ऑर्डर क्या है 4. Next again, what is the order? It is very easy. Okay, Bhavya,
4. हाँ बहुत इजी है ये, देखो प्लस साइन बना हुआ है, 90 सेंटर से 90 का टर्न दोगे तो भी फिर 180, फिर 270, फिर 360, सो द ऑर्डर इज 4. इसके देखो वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे, यू विल गेट अ ट्राइंगल, ठीक है ना, अबाउट अ मार्क पॉइंट एक्स. व्हाट इज द ऑर्डर, हु विल टेल मी? ओके किरतपाल, शाबाश बेटे बताइए. मैम 3. Very good, Kiratpal. Answer is 3. This is the figure. Who will tell? Kiratpal, आप unmute हो, आप म्यूट हो गए फिर से. ये कौन है? सम्राट. ओके सम्राट. मैम 1. इसका ऑर्डर 1. ये कैसी फिगर है सम्राट? मैम रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर. तो अभी आपको समझाया था मैंने रेक्टेंगल का ऑर्डर क्या होता है? 2. हाँ 2, क्योंकि रेक्टेंगल को देख 180 मतलब आधा टर्न, 1/4 नहीं आधा. इसको ऊपर वाला आधा टर्न का मतलब ये जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी. तो तुम देखोगे है ना, तो जब 180 का टर्न दोगे तो आपको ऐसा ही रेक्टेंगल दिखेगा. तो एक 180 हो गया, एक 360 मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था. तो ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है? 2. और बेटे लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है? 2. तो ये इजी क्वेश्चन है. जैसे ना आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल. सच एन इजी क्वेश्चन. कई बार ड्रॉ भी आ जाता है. अगर मान लो मैंने 3 नंबर में ये क्वेश्चन डालना हो तो मैं क्या करूंगी? ड्रॉ भी करने को कहूंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री बताने को कहूंगी और ऑर्डर. 3 चीजें आ गई. तो and it is so simple. Line of symmetry 2, order of rotational symmetry 2 sorry, and everyone knows how to make a rectangle and its line of symmetry. ठीक है. तो the scoring marks is not difficult. बस आपको carefully attention देनी है क्वेश्चन पे और रेगुलर क्लास लगानी है सबके लिए बेटा. Now we have started the revision, so don't miss your classes. Still there are 14 students, those who are not present in the class. Anyways, आगे देखिए. Which of the following letters of English alphabet has a reflection symmetry about a vertical mirror? Now reflectional symmetry का मतलब क्या होता है? Who will tell me reflectional symmetry? कनव. हाँ जी कनव बोलो. कनव पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है आपकी तरफ, है ना, माइक वाइक में. ओके प्रणव. मैम जो फिगर शीशे में भी देखने में सेम दिखती है. शीशे में भी देखने में सेम. और कुछ? अबाउट अ वर्टिकल मिरर, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? क्या समझ आता है आपको इस क्वेश्चन से? प्रणव. मैम की मैम उसकी रिफ्लेक्शन अगर मिरर में सेम दिखेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है. अच्छा आंसर बता, समझ आ रहा कुछ तेरे इस जो आपने अभी बोला उससे आंसर समझ आ रहा कुछ? ऐसे तो आंसर एच. आंसर एच. बट ये बात आपकी ठीक है कि जे उल्टा दिखेगा, बट इसका इस क्वेश्चन का मतलब ये है बेटे, which of the following letters of English alphabet has reflection symmetry about a vertical mirror? About a vertical mirror लिखा है, इसका मतलब किस अल्फाबेट की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है? When we did this chapter, then I told you कि लाइन ऑफ सिमेट्री को बच्चे रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं, मिरर इमेज भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है that which alphabets have vertical line of symmetry. vertical mirror लिखा है ना, vertical mirror means vertical line of symmetry. जैसे हमारे पास A है, A is the alphabet which has vertical line of symmetry. C is the alphabet
C is the alphabet which has horizontal line of symmetry. Horizontal line of symmetry, or we can say that reflectional symmetry along the horizontal mirror. Reflectional symmetry along the vertical mirror. तो उस क्वेश्चन से मतलब ये है कि ऐसा कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट है जिसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है. So clearly the answer is H. I hope the question is clear to everyone now. Next देखेंगे बेटे. Horizontal reflectional symmetry about a horizontal mirror. Horizontal line of symmetry किस अल्फाबेट की है? Clear. अब देखो वैसे हमने क्या किया हुआ है, हमने K की भी horizontal line of symmetry की हुई है. बात समझ में आ रही है आपको? ये देखो, when we did all the alphabets, तब मैंने आपको करवाया था कि K की भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? 1. ऐसे क्वेश्चन हम तो ध्यान से डालेंगे, इन्होंने डाला हुआ है. बिकॉज वाई? बिकॉज दिस नेट इज कंसिडरिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ K टू बी 0. क्योंकि जब हम छोटे थे, जब आप लोग छोटे थे, तो आप लोगों ने, हमने ऐसे सीखा हुआ है कि ऐसे. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम K को ऐसे लिखने शुरू कर देते हैं. तो K की लाइन ऑफ सिमेट्री चाहे आप 0 लिखो चाहे आप 1 लिखो, दोनों को मतलब पूरे नंबर मिलेंगे. और MCQ में अगर हम डालेंगे तो ध्यान से ही डालेंगे. ठीक है. देयर विल बी ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन. एंड सपोज इन एनी केस यू फाइंड द 2 करेक्ट आंसर, देन यू कैन टिक एनी वन. तो दोनों में से जो दोनों के नंबर मिलेंगे. मतलब मान लो A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है. जिसने A लिखा है वो भी, उसको भी नंबर मिलेंगे, जिसने B लिखा है उसको भी नंबर मिलेंगे. समझ आ गई? ओके. सो हियर द आंसर इज H. अब देखो जो H है उसकी वर्टिकल मिरर भी है और हॉरिजॉन्टल. तो अगर इस केस में बच्चे H नहीं लिखते, K लिख देते हैं, उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे. आगे देखिए. Which of the following letters of English alphabet has reflectional symmetry about both? ये आपको बेटा मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल कि पेपर में MCQ की बजाय ये सिंपल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ध्यान से सुनो. Write the alphabets which has vertical line of symmetry. Listen to me carefully. Write the alphabets which has vertical line of symmetry. तो अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल में आप सारे लिख सकते हो जिसकी वर्टिकल है. H भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, O भी लिख सकते हो, क्योंकि इन तीनों की वर्टिकल है. अगर लिखा है write the alphabet which has only vertical, तो only vertical में H I O नहीं लिखोगे. I hope I am clear. अगर लिखा है write the alphabets which has horizontal, तो horizontal में सारे, जिसकी हॉरिजॉन्टल है, जिसकी बोथ है वो भी. लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अगर ओनली हॉरिजॉन्टल लिखा है देन यू हैव टू राइट पर्टिकुलरली दोज अल्फाबेट्स व्हिच हैज ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. देन द क्वेश्चन कैन कम व्हिच हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, यू नो H I O like this, X. Then which has no line of symmetry. So no line of symmetry also, you know there are many alphabets. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है. तो बोथ वाला इसमें कौन सा है? O. The quadrilateral which has both line and rotational symmetry of order more than 1. See, these type of questions are there in your NCERT last exercise में, that are very important, और उसमें से पेपर में आते होते हैं क्वेश्चन. क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों लाइन और रोटेशनल सिमेट्री है, ऑर्डर मोर देन 1. हाँ जी. ओके. आकृति. मैम स्क्वायर. ट्राइंगल इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. रोम्बस और स्क्वायर में से आपने देखना है. तो ऑर्डर मोर देन 1, बोथ लाइन सिमेट्री भी 1 से ज्यादा हो, ऑर्डर भी 1 से ज्यादा हो. मैम स्क्वायर. स्क्वायर. रोम्बस का ऑर्डर क्या होता है आकृति? हाँ जी. हु विल टेल मी? ओके सुहाना.
ओके भव्या, बेटा सुहाना, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। कोई बच्चा अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके सुहाना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। मैम रोम्बस का ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 होता है। अगर हम Yes, इसको ma'am. 180 पे रोटेट करें तो सेम नहीं दिखेगा? मैम आई डोंट थिंक ये दिखेगा। ऑर्डर 180 मेरे हिसाब से तो अगर हम उसको 180 पे रोटेट करें, सिंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो सेम दिखना चाहिए। ओके, आई विल think about this again. ठीक है, I'll discuss also. So we'll come to this question again tomorrow, that whether rhombus has one line order 1 or 2. ठीक है, rhombus का डाउट है, rhombus का हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक अगर हम rhombus ऐसे बनाए, उसको 180 टर्न दे, तब भी तो सेम ही दिखेगा, बट चलो एनी हाउ बनाकर देखेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का तो आंसर था स्क्वायर, एज वी हैव डाउट इन रोम्बस व्हिच वी विल डिस्कस टुमारो। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग डिस्कसिंग लाइक दिस, क्योंकि सिमेट्री चैप्टर है ना बेटा, उसमें ऐसे से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसके टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, राइट? एंड एवरीवन, सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आज। आपको समझ आएगी कि आपको आता है नहीं आता है, सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है बेटा? Now everyone lower your hand, only that child will raise the hand जिसको कोई डाउट है। So no doubt to anyone, it's very good. All right students, see you tomorrow. Take care, bachche.